अभी एक ESG की कंपनी में भी किया था दुबई में। कोई मेरे को बोलता है डेटा सेंटर इज अ वेरी लार्ज इन्वेस्टमेंट, इट्स फ्यूचर, पर 250 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भी राइट, उसमें जमीन भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, राइट। तो उसमें पोर्शन डाल सकते हैं, बट आपका जो मेजर पैसा जाना चाहिए वो बेसिक्स पे जाना चाहिए, तो डे टू डे फिर भी जाए। आप चॉकलेट्स खाना, पानी पीना, कपड़े खरीदना, प्रॉपर्टीज खरीदना नहीं छोड़ने वाले हो। तो आप एटलीस्ट ये सेक्टर्स को तो टारगेट करो ही करो इफ यू आर अ न्यू इन्वेस्टर। तो एक चीज पहले आपको क्लियर कर देता हूँ, स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट्स पे अगर आप रिटर्न उम्मीद करके चल रहे हो कि 5x या 2x होगा तो वो गलत है। नोशनल इंटरेस्ट आपको पता होता है, शायद हम 2-3 गुना तो कमा ही लेंगे, दैट इज वन बिट। यहाँ तो 1 महीना कैपिटल नहीं आया, लोग कंपनियां बंद करके भाग जाते। वहाँ पे ये नहीं था, पीपल यूज टू शाम दाम धन बेद, यही कंपनी चलानी क्योंकि हम पैशनेट है, दैट वाज वन थिंग। एंड सेकंड इज यही तो कभी मार्केट था ही नहीं। Hello everyone and welcome back to the Dhairya Decodes podcast. In today's episode, we're going to be joined by Prateek Toshniwal, who is a very dear friend and a CA turned investor, financial advisor and a CFO, majorly helping businesses out of UAE and India. He's also the co-founder at Ivy Growth Associates and MI Capital Services. He helps businesses and startup founders scale and to be able to actually create real impact in the startup ecosystem. With MI Capital Services, he's actually killing 3 birds, which is wealth, taxes, and debt. In today's episode, we'll decode Prateek's career trajectory. We'll understand everything that went down with him working at KPMG as an auditor to actually starting out his own firm, becoming an investor, getting into the field of financial advisory and working not just in the Indian ecosystem, but working globally with businesses, startup founders, and other investors and family offices based out of UAE and India. I would also like to let you know that Prateek is also one of the faces behind one of India's biggest startup summits that happens every year in Surat, 21/72, which I've personally witnessed year on year since the past 2 years. And in today's episode, if you are somebody who's passionate about growing in the field of financial advisory, or you're somebody who aspires to become an investor, or you want to provide services just like he does with his company in the financial space, then this episode is the right one for you. So stick around till the very end. Without any further ado, let me welcome Prateek to the Dhairya Decodes podcast. Thank you so much, Dhairya, for having me here. It's amazing to, learn from you about the education that you're providing in different fields from different entrepreneurs who build it big. So thank you so much for having me here. The pleasure is all mine, Prateek. I think सबसे पहले I want to start with you telling the audience कि I mean when we go back, if you go back in time और मैं आपसे पूछूं कि was everything set in your life with respect to your career? Since this is a career podcast, just for context, तो जो हमारी audience है, those are majorly students and working professionals who have either chosen a career path or are interested in a career path, or they may be confused and want to get into the career path you are in. So tell me, what kind of a family background did you come from? And was it always set in your mind कि finance field में कुछ करेंगे, CA बनना ही है या यही करना? Like, did you have a set career path? So मेरे घर पे 26 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, राइट। आई कम फ्रॉम अ CA फैमिली, तो मेरे लेकिन ऐसा कोई करियर पाथ सेट नहीं था। नहीं, तो then 26 CA है तो दिमाग में कहीं तो होगा। तो मेरा भाई नहीं है ना, ही इज अ मार्केटिंग गुरु। सो ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, ऐसा नहीं था। ये कोई इम्पैक्ट नहीं था मेरे, नो इन्फ्लुएंस मेरे डैड ने भी कभी फोर्स नहीं किया। हाँ। बट 5th स्टैंडर्ड के बाद से सब्जेक्ट ही तो समझ में आया, वाज मैथ्स। आई लव नंबर्स, राइट। सो मैं वाज ऑलवेज टॉपिंग ऑन मैथ्स, 100 on 100 ही आता था। और मुझे बुखार आता था, तो मुझे 10th तक हमेशा 10 on मतलब 100 on 100 ही आया है। सो ऐसा कोई मेरे पास कोई सेट ना तो गाइडलाइंस थे, ना ही कोई ऐसा फोर्स था कि नहीं तुझे CA ही बनना है। ऑफ कोर्स लेगेसी कैरी कर सकता है तो ठीक है, नहीं कर सकता तो ठीक है। बट 10th के बाद एक अपॉर्चुनिटी मिली कि पापा ने बोला यार बॉम्बे जाएगा। मैं बोला क्यों नहीं जाऊंगा, क्योंकि बहुत कंफर्टेबल स्पेस पे था। जब मम्मी पापा होते हैं ना तो घर पे सब कंफर्ट होता है, खाना परोस के मिलता है, चीजें खुद होनी है। बट बॉम्बे जाने से मेरे को ऐसा लगा कि शायद मैं उस कंफर्टेबल जोन से उभर कर कुछ बन सकता हूँ, राइट। सो आई चोज दैट पाथ। मैंने बॉम्बे 5 साल KPMG से पहले नरसिंह मोहन से पास आउट किया। वहाँ पे 11th 12th भी कॉलेज होता है। हाँ, करेक्ट। सो इट्स फाइन। सो रैगिंग भी हुई, टिपिकल बॉम्बे लाइफ या 11th 12th 3 साल मतलब नरसिंह मोहन में। लेकिन तब मुझे रियलाइज हुआ कि CA करना है, क्योंकि आई वाज मोर इनटू इवेंट्स। आई लव डूइंग इवेंट्स, राइट। तो मुझे ऐसा लगा यार मैं कॉलेज फेस्टिवल में इवेंट ही कर रहा हूँ। हाँ। हर कॉलेज
टोटल 20 और कुछ फेस्टिवल्स होते थे साल में, कभी स्टूडेंट्स यूनियन, कभी टेक्नोलॉजी सोसाइटी, कभी कुछ। तो मैंने बोला यार इवेंट्स ही करना है कि सीए करना है। तो और लकीली मेरा भाई भी, हम दोनों में 4 साल का गैप है, तो दोनों को इवेंट्स बहुत पसंद था। ओके। सो इवेंट करते थे। हाँ। इनफैक्ट मैंने सूरत एक रात ऐसे ही ट्रेन पकड़ के मैं बॉम्बे निकल गया था जब सूरत आया हुआ था, हाँ। क्योंकि नेक्स्ट डे इवेंट करना था और पापा मना कर रहे थे। अच्छा। राइट, फिर भी मैं ट्रेन लेके भाग गया। मैंने मम्मी को बोला कि मैं जा रहा हूँ, हाँ। मैं ये करूंगा, सीए एग्जाम हुए नहीं हुए बात की बात है, मुझे ये करना है। तो इवेंट वाज अ पार्ट ऑफ मी। You've been passionate about it. पैशनेट। मेरे को अगेन इवेंट क्यों करते थे, हाँ। तो मैनेजमेंट ऑफ क्राउड सीखने को मिलता है, Yeah. नेटवर्किंग मिलती है, बहुत अलग अलग लोग आते हैं। True. राइट, एंड स्पीकर्स बहुत, वी कॉल स्पीकर्स, अल्टीमेटली तो स्पीकर्स ही आते हैं उस इवेंट में, तो Correct. सीखने को बहुत मिलता था। एंड मैंने बोला यार प्रैक्टिकल लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बुक्स तो पढ़ लेंगे। कर लेंगे, सही बात है। बट लकीली साथ साथ में सीए भी हो गया और इवेंट मैनेजमेंट मैंने कभी छोड़ा नहीं। मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ यार सीए तो मैं बाद में हूँ, पहले मैं इवेंट मैनेजर हूँ। वाह, मुझे इवेंट करना पसंद है, हर महीने में कोई इवेंट करवा लो मैं ये मुझे इंट्रोडक्शन में बोलना चाहिए था। और आप जानते हो मैं इवेंट्स करता Yeah, obviously that's why I mentioned 21/72. अब मुझे समझ आ रहा है। हूँ। Okay, but tell me this, Pratik. Obviously, CA came to you very naturally also because आपका knack था with numbers, like you said. You loved maths. It came very naturally to you. फिर अकाउंट्स भी आ गया। फिर accounts भी आ गया, ठीक है? But during your entire CA journey and the preparation for it, right? बहुत सारे लोग, a lot of people at least majorly give up on the journey and they find it very tough. I know so many people जिन्होंने 9 attempt, 6 attempt, 10 attempt दिए and it's very difficult. What I want to ask you is not how you prepared for it या कैसे prepare करना चाहिए. How एक बच्चा, for example, जिसको CA बनना है, whether it is उनकी खुद की इच्छा या parents की इच्छा है, if they are preparing for the exam, how do you analyze? वो analyze कैसे करे that am I actually meant to do this or not? When do you give up in the CA journey is my question. वो बहुत लोग है ना गिव अप कर देते हैं बिना एफर्ट डाले, वो गलत है। आप एफर्ट डालो। How do you define effort डाला है किसी ने या नहीं? सो आपने पढ़ाई की और आपके मार्क्स आ गए, पहले ठीक है। अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं। ठीक है। कैसे पढ़ाई की, क्या किया, वो बहुत सेकेंडरी है। हाँ, आपने क्लासेस लिए नहीं लिए, आपने पढ़ाई की, हाँ, आपके मार्क्स आ गए और मार्क्स आपके पासिंग मार्क्स से 25% या 20% कम है। फॉर ठीक है। एग्जाम्पल 200 चाहिए होते हैं, Right. 400 में 200 400 चाहिए। में 200, हाँ, आपके 180 है ना, हाँ, दैट मीन्स यू कैन डू इट। हाँ, और मेरा भाई मतलब पोटेंशियल तो है। पोटेंशियल है, मेरा Correct. भाई लाइव एग्जाम्पल है। हाँ, मेरे भाई को 100 आया तो हमको पता था कि उससे सीए नहीं होना है। राइट, तो वो पता चल जाता है कि पढ़ाई करनी है कि नहीं करनी। गॉट इट। राइट, Yeah. एक तो होता है कि जबरदस्ती पढ़ाई करा रहे हैं, वैसे लोग हार्डली सीए बन सकते। बट अगर आप 180 ला रहे हो, 190 ला रहे हो, 170 भी ला रहे हो, देन यू आर मेंट टू डू इट। द ओनली थिंग इज यू नीड टू रियलाइज कि कौन सा सब्जेक्ट आपका फेवरेट होता जा रहा है, उसमें मार्क्स 60+ ले आओ ले आओ। ताकि वो 200 का एवरेज बन जाए, क्योंकि बाकी तो 40 चाहिए होते हैं करेक्ट, बाकी पेपर्स में। करेक्ट। तो वो मॉडरेशन पे अगर आप खेल सको तो अगर मैं सीए बन गया ना, कोई भी सीए बन सकता है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, 100 on 100 आता था भाई। मैथ्स में मेरे डैड 4 महीने पहले एग्जाम के लेके बैठे थे कि 4 महीने बैठे बेटे, हाँ, पढ़े बच्चे, हाँ, क्या करना है, सीए बनना है कि नहीं बनना है, फाइनल की बात है। उस 4 महीने में मैंने फिर 16 घंटे से पढ़ाई की है, क्योंकि वो एक फोकस हो गया था कि हाँ यार, एक तो पापा का सपोर्ट, दूसरा 4 महीने बचे, उतना टाइम तो आपको देना पड़ेगा अगर ऐसे डिग्रीज हासिल करनी है। एमबीए कोई भी डिग्री आप ले लो, आपको टाइम देना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी। या बट अगेन मैं भी बहुत पेरेंट्स को भी बोलता हूँ, फोर्स मत करो, लेट देम और लेट द किड डिसाइड कि आप लोगों को करना है कि नहीं करना है। कई बार फोर्स में ना हम ड्रेन हो जाते हैं, बच्चे ड्रेन हो जाते हैं, या जो मैं नहीं चाहता। बाकी आई एम श्योर सीए या सीएफए, आजकल तो एक्चुअल्स भी बहुत चल रहा है, या सारी डिग्रीज जो भी आपको लाइन पकड़ना है, आप अपना पाथ खुद पहले चुनो, पेरेंट्स की सुनो, बट एट द सेम टाइम पाथ खुद चुनो। correct. That's That- very important. I mean, as a career coach, I can Correct. say you're 100% right. Correct. But tell me one thing. So you mentioned that obviously एक इंसान analyze कर लेता है as per marks everything, and you obviously enjoyed it and you cleared the examination. You became a CA. How did KPMG come into the picture, and why did you choose auditing, or did auditing choose you? सो ऑडिटिंग से ज्यादा इम्पोर्टेंट, मेरे को तो जब मैंने फाइनल एग्जाम दे दिया, हाँ, मैं श्योर था कि इस बार मैं पास हो जाऊं। हो जाओगे। Right. हाँ, वही मेरे को कॉन्फिडेंस। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा था अंदर से, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट था जिसके कारण मेरे को ऐसा था कि यार शायद नहीं होगा, बाकी तो मैं हो ही जाऊं। ठीक है।
तो रिजल्ट के जस्ट 10-15 दिन पहले कैंपस प्लेसमेंट्स भी चालू होते हैं और लोग अप्लाई भी करते हैं। करेक्ट। तो मैंने बिग फोर में KPMG और EY में अप्लाई कर दिया था। Which college were used? नरसी मुंजी। नरसी मुंजी only, नरसी बॉम्बे only। ठीक है, तो मैंने KPMG में अप्लाई कर दिया था ऑनलाइन ही, खुद ही फॉर्म भर के ट्रैवल करके, पता नहीं मन में आया कि KPMG EY में अप्लाई कर देते हैं। हाँ एंड अगेन एक होता है लक, हाँ। एक होता है थोड़ा सा एफर्ट। तो मेरा एफर्ट था कि मैंने अप्लाई कर दिया था। करेक्ट। रिजल्ट ये 2 दिन बाद मुझे KPMG फोन आ गया कि आप इंटरव्यू के लिए आ जाओ, अच्छा। बिकॉज मैंने रिजल्ट के पहले अप्लाई कर दिया था हाँ और मैं पास हो गया था। हाँ। राइट, सो इट बट डज इट हैव, उसका इफेक्ट होता है? बहुत फर्क पड़ता है। मैंने ये देखा है HR जनरली वेट करती है कि हमारे पास CVs किसकी आ रही है। हाँ राइट, मेरी HR ने मुझे यही बोला कि द गुड पार्ट इज यू ऑलरेडी अप्लाइड, आपने तो काम दे वेरीफाई। दे वेरीफाइड, एवरीथिंग वाज वेरीफाइड। मेरे कॉलेज से, मेरी मार्कशीट से लेकर सब कुछ वेरीफाई हुआ था। ओके। राइट, एंड आई हैड अ गुड इंटरव्यू विद KPMG गाइस। अगेन क्यों मेरे को एज मिला? क्योंकि मैंने अप्लाई करके रखा था। लोग पास होने के बाद अप्लाई करते। राइट। थोड़ा सा भी अगर कॉन्फिडेंस हो हाँ तो अप्लाई कर देना चाहिए, और फेल हो जाए तो जॉब तो ऐसे ही नहीं मिलनी। करेक्ट। ना तो ऐसे भी अपने को पता होने ही है। वाली है, अप्लाई लेकिन अगर अप्लाई करके रखो देन यू आर इन द लिस्ट की जहाँ पे टॉप 10 या टॉप 100 में आपका CV पड़ा होगा। करेक्ट। एंड देन दैट वाज अ जर्नी यार। मेरे को KPMG से कॉल आया, आई वाज इन असम में, भाग के सीधा बॉम्बे आया वापस। हाँ। मैंने बॉम्बे में इंटरव्यू दिया, सेम डे पे मेरे दोनों राउंड्स हो गए, फिर पार्टनर राउंड भी हो गया। इंटरव्यू प्रोसेस कितना लंबा था? अरे पहले मैनेजर, फिर डायरेक्टर, फिर पार्टनर, सारे लेवल अच्छा, तब? ओके। और मेरा इंटरव्यू अगर जेन्युइनली मुझसे पूछा जाए, सो आई डू नॉट अप टू द मार्क। राइट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत डिबेटेबल क्वेश्चंस थे और मेरा आंसर अलग था और उनका पर्सपेक्टिव अलग था। गिव मी एन एग्जांपल ऑफ एनी वन क्वेश्चन जो आपसे पूछा था यार, प्रोसेस में। टीम वर्क वर्सेस इंडिविजुअल फाउंडर, एप्पल वर्सेस अच्छा, रतन टाटा। ओके। राइट, एंड दिस इज फॉर द रोल ऑफ, कैन यू स्पेसिफाई द रोल ताकि शेयर कॉन्टेक्स्ट? इंटरनेशनल टैक्सेशन एडवाइजरी। अच्छा, इंटरनेशनल टैक्सेशन एडवाइजरी। ठीक है, और यू टेक डोमेस्टिक टैक्स एडवाइजरी, व्हाटएवर एडवाइजरी रोल पे मेरे को चुना। टैक्स कंसल्टेंट अप्लाई तो मैंने ऑडिट एडवाइजरी है, मैंने सब में किया था। हाँ। मुझे टैक्स के लिए फोन आया था ना, आई वाज हैप्पी कि टैक्स कर लेंगे यार। एंड जॉब रोल जो ये दे रहे थे वाज एज एन एसोसिएट, एज एसोसिएट, एज एन एसोसिएट। ठीक है, तो उन्होंने मैं जो पूछा रतन टाटा वर्सेस उस समय स्टीव जॉब्स थे, तो मैंने बोला स्टीव जॉब्स। हाँ. राइट, बिकॉज ही इज द पर्सन हु बिल्ट इट एंटायरली एंड देन क्रिएटेड अ टीम। करेक्ट। राइट, अगर सब कुछ ही आप पहले डे 1 से टीम में हो तो एक लेवल तक फर्क पड़ता है। दैट वाज माय आंसर। हिज ओपिनियन वाज टीम नहीं है तो आप क्या कर लोगे? तो मैंने बोला देखो, नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट US वर्सेस इंडिया कल्चर। राइट, USA में जनरली सिंगल फाउंडर्स या वैसे ही होते हैं जो बनाते हैं एंड देन सो वो कॉन्टेक्स्ट में कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे, कुछ ऐसे टेक्निकल क्वेश्चंस थे जहाँ पे वो मेरा टेस्ट करना चाहते थे कि ये सीखने के लिए रेडी है कि नहीं, या इसको अगर हम कुछ बोलेंगे तो ये रिसर्च करेगा क्या। उन्होंने मुझे पूछा यार कि BEPS क्या होता है ना, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग क्या होता है। ओके। ठीक है, अब मेरे लिए बहुत नया था वो बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग, तो हमने खाली पढ़ाई में पढ़ी है, कभी हमको पता नहीं था क्या होता है। हाँ. पर इसका मतलब ये होता है अगर आपने इंडिया से बाहर प्रॉफिट शिफ्ट किया तो टैक्स लगना चाहिए। अच्छा, सिंपल लैंग्वेज, लेमन लैंग्वेज में ये है कि इंडिया का टैक्सेशन आपने UAE भेज दिया क्योंकि UAE 0% है, तो इंडिया 40% टैक्स करेगा। हाँ, समझ गए। तो अभी उन्होंने पूछा, मैंने क्लियरली बोला मुझे नहीं आता, पर मैं सीख के आपको बता सकता हूँ कि ये क्या होता। हाँ. That's where he told me this is what we are looking for. Right. We don't want people who have all the knowledge. Knowledge की क्या करेंगे अगर आप में ग्रिट और डिटर्मिनेशन ही नहीं है? The willingness to learn and put in the effort. तो उस दिन से 8:15 was my office time. मैं सबसे पहले पहुंचता था और मैं सबसे लास्ट निकलने की कोशिश करता था। तो ये जो था ना फेज, वो मुझे KPMG ने दिया और मेरे पार्टनर ने मुझे इसी के लिए अप्रिशिएट किया कि लर्निंग कैपेबिलिटीज थी। Now they are very happy where what you're doing, yeah. They're very happy. So yeah, KPMG happened this way. Great. You know, I was working at KPMG too, right? No, I didn't know this. Yeah. Just for context, but obviously not in the finance department or the tax audit department, but in the consulting house. So management consulting department, I was a technology consultant. Wow. My first and only job out of engineering college. And now you're a corporate trainer. Yes. See? Yes. So that's how we have that commonality of KPMG. But tell me, how did a global firm and a big four like KPMG, उसका क्या impact रहा आपके career में? How many years were you in KPMG? I was at 3.5 years. 3.5 years. Top 3 learnings आपकी क्या थी? What did you learn, whether it's with respect to the corporate hierarchy and system, and how such big, conglomerates actually operate, or learnings around audit, taxation, client work,
it was a client-facing role, I'm assuming as well. Any of your top 3 learnings? So the first learning was, structure कैसे होता है. हम बहुत अनस्ट्रक्चर्ड चलते हैं अपनी लाइफ में, कोई डिसिप्लिन नहीं होता. उसने मुझे स्ट्रक्चर बनना सिखाया, राइट, कि सुबह कहाँ से चालू करना है, शाम को खत्म क्या करना है, एंड देन हमारे को फ्राइडे टाइमलाइंस भरनी पड़ती थी, कौन से प्रोजेक्ट पे क्या टाइम शीट भरनी पड़ती, ये तो सैलरीज अटक जाती. Correct, I swear. So that is what I learned. Yeah. Value of that system. Yeah. The second is, the research that we did was extensive, क्योंकि उनकी लाइब्रेरी का कोई मुकाबला नहीं है, राइट. हम गूगल कर लें, हम चैट जीपीटी कर लें, कुछ भी कर लें, उनकी जो लाइब्रेरी है ना इज अमेजिंग. प्लस यू गेट डिफरेंट पर्सपेक्टिव. सो उनका नॉलेज बैंक एंड रिसर्च इज समथिंग that I took away, Yeah. right, as my learning. And the third thing is, I learned for the first time team management. मुझे टीम मैनेजमेंट आता ही नहीं था, right? Correct. That taught me team management. So Right. these are the 3 valuable things. Of course, I had a great director and a great manager in the team, but these are my top 3 learnings from KPM. Amazing. And if somebody, जैसे आपका रोल था वैसे ही वो आज भी लेट्स से क्रैक करते हैं वो रोल इन द ऑडिट और टैक्सेशन और एडवाइजरी डिपार्टमेंट, उनकी करियर ट्रैजेक्टरी कैसी लग सकती है? What I'm trying to understand is you start as an associate maybe or an analyst. How does it progress and what kind of salary were you making in the beginning and what can it go up to at a partner level? Just approximates. So देखो यार, आज के दिन पे शायद 10 लाख रुपए है ठीक है, स्टार्टिंग बेस. हाँ. 8 to 10 लाख रुपीज इज द स्टार्टिंग. आप एसोसिएट लेवल से चालू करते हो, हाँ. देन यू गो टू सीनियर एसोसिएट्स, असिस्टेंट मैनेजर, करेक्ट. आप बढ़ते हो, राइट. हाँ. पार्टनर लेवल तक, क्योंकि मेरे ब्रदर इज अ पार्टनर इन डेलॉयट, मुझे अच्छा. थोड़ा नॉलेज है. नाइस. यू मेक एटलीस्ट 1 करोड़ रुपए Very easily. very easily plus to profit share, The profit share of every deal you bring. right? So this is how much you can make. Correct. So career path तो एक चीज हो गई, Yeah. बट ये मैंने कहीं पे भी देखा है, केपीएमजी नहीं, कोई भी वो लोग बहुत जल्दी स्विच कर लेते हैं Yeah. कि आज प्रतीक ने रखा है मुझे 1 लाख रुपए पे, कल धैर्य 1.5 लाख रुपए दे रहे हैं तो मैं शिफ्ट हो जाऊं, चले जाओ. हाँ. right? Correct. बट मैंने देखा है वो आदमी एक लेवल तक ग्रो कर पा रहा है. एक ही कंपनी में अगर आपने 20 साल बिताए ना, वो 20 साल में आप जितना बनाओगे ना, ये आप करियर चेंज करके नहीं बना सकते. बिकॉज लॉयल्टी इज ऑलवेज प्ले करता है, कभी इधर भी तो कंपाउंडिंग काम आती है. कंपाउंडिंग काम आती है, राइट. एंड बहुत सारे स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशंस में आपकी सेविंग्स कहाँ होती है आपको पता भी नहीं चलता. पीएफ कटता था हमारा, करेक्ट. राइट. यस. तो वो केपीएफ में एम्प्लॉय प्रोविडेंट, तो वहाँ हमारा हाँ. पैसा लगता था, उस पर इंटरेस्ट भी मिलता था. करेक्ट. ऐसे बहुत सारे प्लानिंग वो ऑलरेडी करके रखते हैं हमारे लिए. ट्रू. तो वो सारी जो चीजें हैं ना, ये हमने देखा है कि 12-15 साल किसी ऑर्गेनाइजेशन को दो, एंड आप 12-15 साल 10 ऑर्गेनाइजेशंस को दो, आप पैसे तो बना लोगे पर फ्रस्ट्रेटेड रहोगे. यहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड नहीं रहोगे क्योंकि आप सिस्टम में, और इसलिए इसकी वैल्यू पैसे के साथ बहुत ज्यादा है. पर व्हाट इफ किसी को अपनी ग्रोथ स्टैग्नेटेड लग रही है उस कंपनी में, तो दैट्स अनदर थिंग. आप 4-5 साल काम कर लिए और फिर भी आपके साथ ऐसा ही होगा, दैट्स अ वेरी थिंग. बट अगेन यू गेव 3 एटलीस्ट 1000 दिन दिए ना आपने. करेक्ट. 1000 दिन 1500 दिन तो दिए उस ऑर्गेनाइजेशन को. आप बोल रहे हो यार मैं 50 दिन में टायर्ड हो गया, मैं 180 दिन में टायर्ड हो गया. मतलब आजकल बहुत सीवीज आते हैं 6 महीने में स्विच, 9 महीने में स्विच, 1 साल में स्विच. यू नॉट गिविंग एम्पल टाइम, क्योंकि पहले 3 महीने तो सिस्टम को समझने में लग जाता है. अरे 3 महीने के, मुझे तो पहले 6 महीने मेरा जॉब रोल ही समझ नहीं आता करना क्या है. तो प्रोबेशन पीरियड, लिटरली प्रोबेशन पीरियड, अब आ गया, अब कन्वर्ट हो गया है. करेक्ट. सो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, एंड आई थिंक इसलिए ही मैं केपीएमजी में था 3.5 साल, क्योंकि मुझे इतना पता था कि अगर मैं एंटरप्रेन्योर बनता भी हूँ, या मैं शिफ्ट भी लेता हूँ, तो केपीएमजी के बाद जॉब नहीं करूंगा वापस. दैट यू न्यू. जॉब मैं केपीएमजी में ही करूंगा, जितने टाइम भी करूंगा. Yeah. So that was the concrete thing in my mind. Nice. That clarity you had. Clarity I had. So KPMG में फिर काम करते हुए, when was that point where you had this intervention in your head that I would want to do something of my own, or did you always know ultimately life में अपना खुद का कुछ करना है, या एंटरप्रेन्योर बनने का कीड़ा आया कहाँ से? So मेरे पार्टनर ने मुझे डे 1 पे बोल दिया था केपीएमजी के कि तू जाएगा क्योंकि तेरे फादर प्रैक्टिस करते हैं. अच्छा. मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था, बिकॉज सी सूरत वर्सेस बॉम्बे था. हाँ. राइट. इफ यू आस्क मी ग्रोथ वाइज बॉम्बे इज फार ऑफ. करेक्ट. सूरत अपनी जगह है, हाँ. बट बॉम्बे की एक रेपुटेशन अलग है, सर्कल अलग है, क्लाइंट बेस बहुत अलग है. राइट. यू गेट एमएनसीज इन बॉम्बे, डोंट जनरली गेट इन सूरत. सो मुझे ऐसा था कि यार मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, क्यों इनको ऐसा लग रहा है पता नहीं. बट जब 3-3.5 साल हुए, पापा मेरे साथ आए कि अब तुझे आना ही पड़ेगा क्योंकि मेरी प्रैक्टिस को संभालेगा कौन. सो मैं मेरे डायरेक्टर के साथ पापा को मिला था, ये सारी चीजें हुई. कुछ भी प्लानिंग नहीं था कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है नहीं बनना है. एक किक जरूर लगी थी 2016 में. ओके.
जब स्टार्टअप्स बहुत बढ़ रहे थे, Yeah. हमारे क्लाइंट बेस में भी हमने देखा यार ये $100 मिलियन उठा रहा है, हाँ. कोई $20 मिलियन उठा रहा है, ये है क्या, ये चल क्या ये रहा है? चल क्या रहा है, Correct. राइट। एंड इंडस्ट्री थोड़ी सी अलग हो रही थी, मैच्योर हो रही थी। Right. बॉम्बे में थे तो ज्यादा दिखता था, हाँ. ठीक है। तो मेरे को लगा यार क्या मुझे भी करना चाहिए वो एक किक चलती थी। Yeah. लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि फादर की प्रैक्टिस को ही संभालना मेरा अल्टीमेट एम है। Right. तो वो इवेंचुअली हुआ। आई थिंक फादर की प्रैक्टिस को ज्वाइन करने के बाद 6 महीने में मुझे समझ में आ गया Months. कि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप ही करनी है, करनी है. मुझे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना है, स्टार्टअप्स के साथ अपना पैसा लगा के, लोगों का नहीं। Okay. पहले अपना पैसा लगाऊंगा, हाँ. उनके साथ बड़ा होऊंगा, कुछ डील खराब भी होगी, कुछ अच्छी भी चलेंगी, हाँ. बट मुझे वो जर्नी जीनी है 15-20 सालों के लिए, जिसमें मैं देख रहा हूँ यार केपीएमजी में क्या होता था, बैलेंस शीट आती थी, हम देख लेते थे। Correct. यहाँ मुझे बैलेंस शीट बनानी थी. Yeah. तो मुझे बैलेंस शीट बनाने वाली जर्नी ज्यादा पसंद आई। Then reviewing it or analyzing it. सो दैट वाज माय इंस्टिंक्ट ऑफ स्विच कि यार अब मुझे एंटरप्रेन्योरशिप करने है, हम्म। अब मुझे इसी फील्ड में आगे बढ़ना है, और चाहिए कि प्रतीक के साथ 10 कंपनियां इतनी बड़ी बने जिसमें हमारा थोड़ा सा Something larger than you, beyond you. Correct. Right. Amazing. So फिर मुझे ये बताओ that when you decided कि चलो I have to quit the job, joined your dad's practice, how long were you associated with his practice? 4 years, 4 years. बट 4 years में आई स्टार्टेड दिस आईवी ग्रोथ। Ivy Group you started? अच्छा, 2019 से सब कुछ चालू हो गया था प्रोसेस। Okay. सो आईवी ग्रोथ मैंने क्लियर किया। मेरे फादर डेट प्रैक्टिस में नहीं थे, अच्छा. लोन्स के प्रैक्टिस में नहीं, नहीं थे. वो प्रैक्टिस मैंने नया लाया। Okay. थैंकफुली मेहुल शाह, रचित एंड शरद, Yeah. दे वर देयर इन द इकोसिस्टम। तो They are his co-founder at Ivy. फाउंडर एट आईवी ग्रोथ। Yeah. उन्होंने बोला यार आइडिया तो बढ़िया है, राइट। और सूरत में बहुत लोग कर रहे थे, बट आई थिंक द प्रोमिनेंट नेम वाज गौरव सिंघवी। ही ब्रॉट कॉर्पोरेट्स टू सूरत, Yeah. नो मैटर व्हाट, Yeah, yeah. लोग कुछ भी बोले, ही ब्रॉट दैट प्रोफेशनलिज्म टू सूरत। तो मेरे को भी ऐसा था यार अपने भी इस इकोसिस्टम में क्या वैल्यू क्या ऐड कर सकते हो। हाँ. तो यू नो आई फेल्ट कि यार ये 3 मेरे जो हैं जिनके नीचे मैं सीए बना, मेहुल शाह के नीचे मैंने आर्टिकलशिप की थी, अच्छा. तो ही इज बीन माय मेंटर। Okay. रचित एंड शरद आर माय चाइल्डहुड बडीज, Buddies. 30 इयर्स से हम फ्रेंड्स हैं। Yeah. तो मैंने बोला अगर ये 3 मेरे साथ हैं तो हाँ. हम कुछ बड़ा कर सकते हैं इकोसिस्टम में। एंड यू नो ऑल 3 आर पावर हाउसेस। सो इफ भाई एनर्जी का भंडार एक जगह पे Exactly. डाल दो। और रचित से कोई हैंडशेक कर लेता है तो बस- ऐसा लगता है बॉस उससे ज्यादा कुछ हो बढ़िया है, बस मतलब दिन में आपको और एनर्जी चाहिए। जरूरत ही नहीं है, जस्ट शेक हैंड्स विद अचित पोद्दार। करेक्ट। सो मेरे को उससे ये आया कि यार 2019-20 में जब हम बैठे, जब लोग काम नहीं कर रहे थे, कोविड आ गया, करेक्ट। हमने ये आइडिया निकाला और तब लॉन्च हुआ 21/72, जिससे आई थिंक हम लोगों को एक डिफरेंट पूरा वेव और इकोसिस्टम मिला। So that was the kick. Great. But when you were telling this and you told me that 30 years, your co-founders you were friends with, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं that friendship या personal relationships and business को mix नहीं करना चाहिए and you shouldn't involve money in friendship etc. How is your experience been? Because I think it's been successful, but वो balance कैसे create करे when you're working with your close ones, maybe your relatives, maybe your spouse or friends? Because I feel a lot of times you want to, right? Like today, if you ask me, if I was to start another venture apart from Ananta Educators, which is the training arm and my company there, I would want to do it with somebody and I would want कि वो somebody मेरे known में ही हो. But then फिर लोग बोलते हैं रिश्ते में मनमुटाव आ जाता है, ये हो जाता है. Tell me what's your take on that? Of course आता है। I have seen बहुत दोस्तियां टूटती हैं। हाँ. लकीली हम चारों में ना एक चीज देवन से क्लियर था कि 5,000 भी किसी के जेब से लग रहे हैं ना, हाँ. तो वो बता देता था कि 5,000 लगे हैं और वो सिस्टम के पैसे। Okay. मतलब अगर हम एक एक्सपेंस कर रहे हैं जो 5,000 रुपए, तो वो आईवी ग्रोथ से ही जाएगा। मेहुल नहीं देगा, शरद नहीं देगा। हम्म। वो जो हमारे में कंफर्ट लेवल था ना कि हम एक्सपेंसेस बता देते थे, ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी एंड एथिक्स, हमने इसको कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। Yeah. नथिंग टू डू विद कोई पैरेलल इकोनॉमी नहीं। सब आएगा तो बैंक अकाउंट में आएगा, सब पे टैक्स भरा जाएगा, जो सिस्टम है उसको फॉलो करेंगे, थर्ड पार्टीज हमारी वेरीफाई करेंगी। Correct. तो जब वो हम चारों में क्लियर था ना, तो हमको क्या चीज का डर। देखो दोस्ती में पैसे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, Yeah. बट अगर आप प्रोफेशनलिज्म और पर्सनल को अलग कर दो ना, इट्स वेरी इजी। और ये इसका सबसे ग्लेयरिंग एग्जांपल वाज माय डैड। Okay. मेरे फादर ने कभी भी ये मुझे नहीं बोला कि तूने ये काम करवाया तो मैं 1,000 रुपए नहीं लूंगा। ये अगर सर। काम है ना, प्रोफेशनल है ना, हाँ। तो मैं पैसे लूंगा, लूंगा। 100% लूंगा, चाहे तू मेरा बेटा हो, मेरा भाई हो, कोई भी हो। एंड दैट्स व्हाट आई लर्न फ्रॉम हिम कि यार कोई फ्री में नहीं काम करता, राइट? आप
मैं आपके पास आऊँ, आप दे दोगे मेरे को फ्री एजुकेशन? नहीं दे पाओगे। नहीं डिफिकल्ट है, नहीं दूंगी। आप एक बार कोई फ्री 15 मिनट की क्लास दे दो, दैट्स अ सेपरेट थिंग बिकॉज ऑफ फ्रेंडशिप। करेक्ट। बट आपको अगर मैं 1 घंटे का लेक्चर देने बोलूँ तो आपका इनवॉइस आएगा ही आएगा। सो दैट्स व्हाट माय डैड टॉट मी। और मेरे को ऐसा ही था कि यार हम चारों में ये डे 1 से क्लियर हो गया था कि यार हम पैसे सारे के सारे सिस्टम में डालेंगे और सिस्टम से ही खर्चा करेंगे। 1 रुपए भी कहीं लग रहा है तो सिस्टम देगा। गॉट इट। इसलिए हमारे लिए बहुत ईजी था। इसलिए इट्स बीन वर्किंग आउट फॉर यू। बट अगर वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है ना, हाँ अगर आप अपने दोस्त को नहीं बोल सकते कि मेरा 5,000 रुपए लगा है हाँ, और आपको ये देना पड़ेगा, तो it's a सिस्टम कभी चलेगा वो नहीं चलेगा। या 5,000 नहीं मांग सकते, 5 करोड़ क्या मांग? सिंपल सी लॉजिक है। राइट। तो पर्सनल प्रोफेशनल को अलग रखो, सिस्टम चल जाएगा। नहीं होगा कि यार धैर्य तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, राइट, क्या ही इसको बोलना, बोला है, हाँ। तो वो खाली खराब ही हो गया। गॉट इट। इंटरेस्टिंग, गुड पर्सपेक्टिव। सो ऑडियंस के लिए आई डोंट नो इफ यू कैन एक्सप्लेन व्हाट आई simple terms, because again not everybody may understand the concept of what you guys do as an organization, तो वो अगर आप थोड़ा बता सको। यार बहुत सिंपल है। एक स्टार्टअप को अगर 5 लाख रुपए रेस करने, ठीक है, तो हम 10 इन्वेस्टर्स ढूंढते हैं जो 50-50 हजार रुपए डाल सके। ओके। दैट इज IV ग्रोथ्स मेन मॉडल। द सेकेंड biggest revenue factor for IV growth is event management. Right. Event has to come. मेरे में इवेंट का कीड़ा है, तो हम जो 21/72 करते हैं, राइट, उसमें हम पूरे इकोसिस्टम को एक साथ लाते हैं। हमारा इंटेंशन यही है कि हम वहां पे बिजनेस पे फोकस करें और कैपिटल रेज पे स्टार्टअप्स के फोकस करें। हमारा एम डे 1 से यही था, स्टार्टअप्स को 25 लाख से 1 करोड़ तक की कैपिटल अगर चाहिए तो उसमें IV ग्रोथ पहला 5 लाख या 10 लाख डाले। ओके। और बाकी जो बैलेंस अमाउंट है वो हम ऑडियंस से रेस कर रहे हैं। हमारे पास आज 320 एंजल इन्वेस्टर्स हैं और ये सब आप लोगों के लिए। अगर आपके पास 50,000 रुपए महीना है जो आप म्यूचुअल फंड में डालते हो, तो 50,000 रुपए महीना आप स्टार्टअप्स में डाल सकते हो और आप 5 साल में 25 लाख का एक पोर्टफोलियो स्टार्टअप्स का बना सकते हो। बिकॉज सेबी का नॉर्म्स बोलता है 5 साल में 25 लाख डालने, विच इज 50,000 पर मंथ। राइट। सो ये बहुत लोगों को नॉलेज नहीं है। राइट। दिस इज वेयर वी क्रिएटेड आवर एंजल इन्वेस्टर्स। अब मेरे पास 300 लोग हैं, हाँ, 300 into 50,000, you can do the math. So that's how we build our ecosystem. Got it. Amazing. And when we talk about the world of angel investing and venture capital, Correct. generally बहुत confusion होता है regarding angel investing and venture capital में difference. Correct. And what a VC does versus what angel investors do. Correct. Right? So if you can explain that a little, and मुझे ये भी बताना that at IV Growth, what kind of startups did you focus on early on to start investing in? जब आपने just start किया। So angel investors वो होते हैं जो up to 25 लाख रुपए चेक्स डालते हैं। ठीक है। राइट। उसके ऊपर अगर आप 1 करोड़ रुपए चेक डाल रहे हो, हाँ, या 2 करोड़ डाल रहे हो, क्योंकि वेंचर कैपिटल की लिमिट 1 करोड़ 2 करोड़ होती है और आपके नेटवर्क बेसिस पे होती है। हाँ। तो एंजल वर्सेस VC का मेजर फर्क ये होता है, एक तो कैपिटल, सेकेंड एनालिसिस। ओके। VCs आर पीपल जो लेट स्टेज स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करेंगे, डे 1 पे जनरली नहीं आते जनरली। डे 1 पे आपके एंजल्स और इंक्यूबेशन सेंटर्स ही लोग डालते हैं। So generally seed rounds में you are saying it is angels who participate. MVP and C, pre-seed and seed, हाँ, angels करते हैं। ठीक है। Pre-series A and above VCs करते हैं। That's the basic difference. IV ग्रोथ ने हमेशा सीड लेवल के स्टार्टअप्स को लिया है। प्रोडक्ट रेडी होना चाहिए, हाँ, थोड़ा बहुत ट्रैक्शन होना चाहिए, ओके, और 1 लाख रुपए महीने की रेवेन्यू होनी चाहिए एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए। ठीक है। राइट। तो इन लोगों पे हमने फोकस किया। 2021 हम लोगों ने एडटेक, हेल्थ टेक, फिनटेक्स पे फोकस किया था। 21 के बाद एरा EVs का था, तो हमने EVs में कोई सेगमेंट नहीं छोड़ा। हमने हर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स पे इन्वेस्ट किया। नाइस। उसके बाद हमने टेक्नोलॉजी पे थोड़ा फोकस किया क्योंकि AI टेक्नोलॉजी बढ़ रही थी। D2C हमारा हमेशा से कोर रहा है क्योंकि रोटी कपड़ा मकान कहीं नहीं जाएगा। लोग कितना ही कुछ भी बोल ले, रोटी कपड़ा मकान कहीं नहीं जाएगा। राइट। एंड आज के दिन पे कोई मुझे पूछता है तो प्रॉपर्टी टेक, व्हिच इज प्रॉप टेक एंड फ्रैक्शनल ओनरशिप, रियल एस्टेट आल्सो। रियल एस्टेट अगर किसी ने ढंग से बनाया हुआ है तो वेरी गुड इन्वेस्टमेंट्स टू डू। तो हम हमेशा सेक्टर इग्नोस्टिक रहे, पर हमने टाइम वाइज एक इंडस्ट्री को पकड़ के उसमें इन्वेस्ट किया। जैसे अभी हमारा फोकस क्लाइमेट और एग्री पे भी है। एग्रीकल्चर इंडिया का कहीं नहीं जाना, राइट, इट्स गोना गेट बेटर। तो क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी, ESGs, करेक्ट।
क्लाइमेट. सो मैंने पर्सनल इन्वेस्टमेंट अभी एक ESG की कंपनी में भी किया था दुबई में. तो हम इंडिया में भी वही फोकस कर रहे हैं कि जो भी फ्यूचरिस्टिक हो. अभी कोई मेरे को बोलता है डेटा सेंटर इज अ वेरी लार्ज इन्वेस्टमेंट. या इट्स फ्यूचर. या पर 250 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भी राइट. उसमें जमीन भी चाहिए, सब कुछ चाहिए. राइट. तो उसमें पोर्शन डाल सकते हैं, बट आपका जो मेजर पैसा जाना चाहिए वो बेसिक्स पे जाना चाहिए, तो डे टू डे फिर भी जाए. राइट. आप चॉकलेट्स खाना, पानी पीना, कपड़े खरीदना, प्रॉपर्टीज खरीदना नहीं छोड़ने वाले हो. तो आप एटलीस्ट ये सेक्टर्स को तो टारगेट करो ही करो इफ यू आर अ न्यू इन्वेस्टर. एंड ये हम आईवी ग्रोथ में करते हैं. ग्रेट. जो अस्पायरिंग आई वुड से एंजल इन्वेस्टर्स हैं या जिनको आपकी तरह एक इन्वेस्टर बनना है इन द फ्यूचर एंड हैव अ पोर्टफोलियो लाइक योर्स, कौन सी टॉप 3 स्किल्स हैं दैट यू हैव टू बिल्ड एज एन इंडिविजुअल to invest in the right startups, analyze the startups and the founders well and make good returns? So हम जिस लेवल पे आते हैं उसमें हम बंदे पे पैसा लगाते हैं. क्योंकि हम सीड लेवल पे आते हैं. उसमें कोई हिस्ट्री नहीं होती, कोई बैलेंस शीट्स नहीं होते. तो बंदा कैसा है और रियल इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दैट्स आवर फर्स्ट फोकस. लेकिन जब आप थोड़ा सा बड़े कंपनीज में पैसा लगाते हो ना, तो धंधा भी देखा जाता है और टीम भी देखी जाती है. राइट. सो दैट्स द मेजर डिफरेंस. कोई नया चालू कर रहा है तो उसको ये समझना चाहिए कि साल में उसकी ताकत कितनी है पहले कैपिटल लगाने की. सपोज 5 लाख रुपए की ताकत है, तो उसको 5 लाख को 2 या एटलीस्ट 3 स्टार्टअप में बाइफरकेट करना चाहिए. ठीक है. फर्स्ट वो सेक्टर जिनको वो समझता है, ना कि फोमो. हाँ, फोमो में नहीं. क्या हो रहा है ना, प्रतीक ने लगाया तो मेरे भी लगाए लो. क्या है, प्रतीक ने तो पढ़ा ही होगा ना. अगर ऐसे इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं ना, वो इन्वेस्टमेंट्स खराब ही हो रहे हैं. सो बेटर है अगर प्रतीक टेक्सटाइल में है तो टेक्सटाइल के रिलेटेड स्टार्टअप्स अगर आ रहे हैं तो यू शुड फोकस ऑन दैट. वहां पे इन्वेस्ट करो क्योंकि वो आपको समझ में आता है. राइट. ऑफ कोर्स टेक समझ में आता है तो टेक में इन्वेस्ट करो, पर अपने सेक्टर्स को पहले चुनो. उसके बाद लोगों के साथ आप एक बार सिस्टम में आ जाओगे ना, तो आप समझ जाओगे क्या चेक होता है. बैलेंस शीट चेक होती है, कैश फ्लो तो देखना ही है, कैश फ्लो देखना पड़ेगा, बंदा देखना पड़ेगा, इम्पैक्ट क्या क्रिएट कर रहा है वो प्रोडक्ट, वो देखना पड़ेगा. These are your basic things. Procedures, process, corporate governance, of course, are softer aspects. Corporate governance has become a large aspect. Yeah. But आपको day 1 पे corporate governance मिलेगा ही नहीं ना. True. सही बात है. Seed level पे क्या corporate governance करोगे आप? So आपको ये ध्यान रखना है कि suppose 5 लाख आज आपने डाला स्टार्टअप में और 2 साल बाद उसी स्टार्टअप पर वापस राउंड हो रहा है, तो आप वापस उस स्टार्टअप में पैसा अगर नहीं डाल सकते ना, तो ये रेडी रहना कि उस स्टार्टअप का पैसा आपका जाने वाला है, बिकॉज कहीं ना कहीं उसने गड़बड़ की है. करेक्ट. एंड दैट्स हाउ आप बेटर होते हो अपने इन्वेस्टमेंट्स पे. कुछ इन्वेस्टमेंट्स में आपको लगेगा यार आपने बहुत बढ़िया रिटर्न कमाया, कुछ में लगेगा आपने एवरेज कमाया और कुछ तो खराब होंगे. करेक्ट. पर उस प्रोसेस को आपको फॉलो करना पड़ेगा और ब्लाइंड फॉर्मो पे इन्वेस्ट मत करो. कोशिश करो कि आप एटलीस्ट साल में 6 महीने में एटलीस्ट हाफ ईयरली आप अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को पढ़ो और उसको समझो कि उसमें सही और गलत क्या था. So what I understand is technically understanding the industry you're investing in Correct. is very important. Correct. Right? It is also very important to analyze and do your research well. Correct. Right? And like you mentioned, you have to आप bet जो कर रहे हो end में, क्योंकि आप एकदम seed वाले जो investments है वो कर रहे हो, बंदे पे ही कर रहे हो आप. And the vision and the impact they are projecting to create. Correct. क्योंकि अभी तो कुछ है नहीं. Right? When you put in slightly larger checks, what are the other checks beyond this, beyond the team and just the profit margins, or are they EBITDA positive or not, etc.? What else matters that can help a company stand out? प्रोडक्ट कैसा है, ग्लोबल सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है, Okay. कि खाली इंडिया फोकस ही चलने वाला है. राइट. रिव्यूज कैसे हैं प्रोडक्ट के जिन्होंने यूज किया. Right. राइट. कस्टमर कस्टमर रिटेंशन कहाँ पे है, खाली ऑफलाइन हैवी है या ऑनलाइन भी है. हाँ. राइट. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको आपको देखना पड़ता है. आज अगर प्रतीक हेड एंड शोल्डर यूज कर रहे हैं, तो क्या हेड एंड शोल्डर को छोड़ के उसने कोई दूसरे ब्रांड में इन्वेस्ट किया है, वो आपको फाउंडर से भी पता चल जाता है. ओके. फाउंडर की जर्नी 2 साल में बैलेंस शीट में कई बार खुद का कैपिटल इन्फ्यूज करना पड़ता है फाउंडर्स को. करेक्ट. एज अ लोन और whatever. हाँ, या क्या वो फाउंडर ने किया है जब कंपनी डिस्ट्रेस में थी, या कैपिटल वापस बाहर से बाहर से. हाँ, या ये सब सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट्स है जो आप सारा चीज देखोगे तो आपको समझ में आएगा. प्लस जिस कंपनी में प्रॉफिट नहीं है, अगर उसके बाद भी फाउंडर अपना कैपिटल सैलरी के तौर पे ड्रॉ कर रहा है,
दैट मीन्स फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके लिए सही हो सकता है, मेरे लिए तो नहीं। नहीं है मैं तो ये समझूंगा कि जो फाउंडर ही 100% कमिटेड नहीं है तो और वो अपना कंपनी सोचे, तो कहाँ ही जाएगी। कंपनी कैसे चलेगी? सो दीज आर थिंग्स दैट वी सी। Got it. Well said. I think, what I was thinking while we were speaking and you were telling me this is कि today when we look at the entire ecosystem and like you were saying जब 2016 में वो पूरा wave आ रहा था to where we are in 2025 as we speak, we've obviously seen trends wherein there was a big edtech boom to the the major downfall in edtech to now people are saying अब edtech 2.0 आ गया है. Correct. And obviously when it comes to ESGs, anything related to sustainability, climate tech, etc., it's all booming. But what I want to know from you is that as an investor, when you're putting in money, obviously you're doing that ultimately to get a return. Of course. ठीक है, आप चैरिटी नहीं कर रहे हो. कोई चैरिटी नहीं करता। ठीक है, अब आप चैरिटी अगर नहीं कर रहे हो और ये क्लियर है, तो जब एक इन्वेस्टर को उसके पैसे या जितना रिटर्न उसने एक्सपेक्ट किया था या प्रोजेक्टेड था नहीं मिलते हैं वापस, आई वुड लाइक टू सो दैट जस्ट द ऑडियंस इज इन्फॉर्म्ड एंड इवन आई वांट टू नो क्या होता है. फॉर एग्जांपल यू इन्वेस्टेड इन माय स्टार्टअप, यू पुट इन लेट्स से 10 लाख चेक, करेक्ट, यू वर एक्सपेक्टिंग ये 10 लाख अगले 5 साल में फॉर एग्जांपल 50 लाख एटलीस्ट बन जाएगा. ठीक है, ठीक है, क्योंकि फाउंडर ने प्रोजेक्शन हाँ प्रोजेक्शन दिखाया है पर वो नहीं हुआ. ठीक है, क्या होता है फिर? सो एक चीज पहले आपको क्लियर कर देता हूँ, स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट्स पे अगर आप रिटर्न उम्मीद करके चल रहे हो कि 5x या 2x होगा, हाँ, तो वो गलत है. नोशनल इंटरेस्ट आपको पता होता है, हाँ, राइट, कि शायद हम 2-3 गुना तो कमा ही लेंगे, दैट इज वन बिट. बट मेरा पॉइंट हमेशा क्लियर है, ये वो कैपिटल होना चाहिए जो आपका स्लीपिंग कैपिटल हो. ठीक है, जिससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा. You've just kept it aside. You've kept it aside and used it कि यार मेरे को ये बच्चे पसंद आए, अगर बड़े लोग हैं तो, या ये फाउंडर्स पसंद आए और मैंने इन पे इन्वेस्ट किया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये कुछ फोड़ेंगे. 3 साल बाद मुझे रिटर्न नहीं मिला ना, तो मेरे को एनालाइज करना चाहिए कि क्या गलत हुआ उन 3 साल में एज एन इन्वेस्टर. खाली फाउंडर्स को एनालाइज करने की नहीं है, आपकी Where who went wrong? Where we went all wrong also, right? Yeah. और 3 साल बाद क्यों करूं? मैं तो ईयर ऑन ईयर करना चाहता हूँ. आप 6 महीने में उनसे MIS मंगवाओ, हर क्वार्टरली मंगवाओ MIS, ये तो आपका हक है, राइट. तो आप देखो कि उन्होंने जो प्रोजेक्शंस दिए हैं और तो आपको 6 महीने में ही दिख रहा है प्रोजेक्शन नहीं मैच कर रही है, तो फिर आप क्या करते हो? तो फिर फाउंडर को सीधा करना पड़ता है. ओके, बोल सकते हो आप, बट अल्टीमेटली देखो, आप अगर 10 लाख, अगेन दिस कम्स विद बिगर चेक्स में आपकी थोड़ी सी से बढ़ जाती है. छोटे चेक्स में आप कुछ नहीं कर सकते. यू नीड टू जस्ट ट्रस्ट द इक्विटी ऑन द टेबल दैट यू हैव. करेक्ट. बट अगेन मेरी लाइफ में इसलिए मैंने बहुत बहुत क्लोज इन्वेस्टमेंट्स किए जहाँ पे फाउंडर जब 1 करोड़ की वैल्यू का था ना, और जब 50 करोड़ पे भी पहुंचा ना, तो मुझे फोन कर सकता है, राइट. आई हैव ऑलवेज बीन एन अप्रोचेबल इन्वेस्टर, और वो इसलिए है कि मैंने 5 लाख रुपए भी डाले हो ना, मैं उनके साथ कांस्टेंट टच में हूँ, राइट. अगर आप पैसिव इन्वेस्टर हो तो स्टार्टअप आपके लिए सही इन्वेस्टमेंट नहीं है. ओके, दैट इज अ बॉटम लाइन. मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ, फोमो में आप इन्वेस्ट कर दो, आपने 25 लाख किसी को फंड मैनेज करने दे दिया, दैट्स अ सेपरेट थिंग. फिर तो आप रिटर्न की उम्मीद करो ही मत, फिर तो जो दे दे फंड मैनेजर दे देगा. बट स्टार्टअप इज अ गेम ऑफ एक्टिव इन्वेस्टर्स, और स्टार्टअप इज अ गेम ऑफ पीपल जो उस फाउंडर को कैपिटल रेस करने से पहले बिजनेस रेस करना सिखाए, उनके लिए मार्केट ऐसा डेवलप करे कि 100 क्लाइंट लाके दे, राइट. इसलिए मैंने जितने इन्वेस्टमेंट्स किए या अभी भी मैं कर रहा हूँ, राइट, इट इज ऑल फॉर पीपल जिनको मैं 100 कस्टमर्स खुद के लाके दे सकता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली मेरे को वैल्यूएशन से एग्जिट नहीं मिलने वाली, उनके धंधे के प्रॉफिट से मिलने वाली है, या कोई लार्जर पैसा आएगा, उन्होंने एग्जिट लिया तो मेरे को एग्जिट मिलेगी, लेकिन वो भी सही वैल्यू पे नहीं मिलेगी, डिस्काउंटेड मिलेगी. करेक्ट. तो अगर धंधा सही रहा ना, तो एग्जिट बढ़िया मिलेगा. दैट इज व्हाट आई टेल पीपल कि अगर आप पैसिव इन्वेस्टर हो तो आप इन्वेस्टमेंट की रिटर्न गिनो ही मत, क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं, आपने तो खाली चेक डाल दिया. कैपिटल इज वन थिंग, बिजनेस क्या किया आपने उनके साथ. और अगर आप एक्टिव हो तो हर क्वार्टरली फाउंडर के साथ मिलने की कोशिश करो, बात करने की कोशिश करो, आपको समझ में आ जाएगा कि अब मुझे नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट में कैसी गलतियां नहीं करनी. True. That's very important. True. So the crux I've taken from this is you're saying an investor's job, एक investor की job सिर्फ चेक डालना और कैपिटल देना नहीं है. That is maybe a part of it or the first step to it. Correct. एक बार चेक दे दिया, it is your responsibility कि आप उन startup founders को enable करो, अपने network से expose करो, and you help them scale and grow. Correct. Now tell me that जब आप generally I think 70+ startups में आपने अभी तक invest किए,
they've been across categories, Across. right? So it's sector agnostic. ऐसा कोई एक और 2 startup founder stories and company stories I would like you to share, जहाँ पे not just in terms of numbers again, capital or returns, you've seen a great return, but the impact that the founder and their product or the service of the company has been able to create has been massive, and that has made you feel that यार we're doing something right, या सही जगह पे हमने अपना time, money and effort लगाया है. करेक्ट. सो मैं एक स्टोरी शेयर करूंगा मेरी वन ऑफ माय फर्स्ट इन्वेस्टमेंट्स की, which is Communities Heritage Private Limited. It was meant to be a prop tech, but it pivoted to become my company also, and it pivoted to different sectors which helped मेरे इन्वेस्टमेंट्स को सिक्योर करने में. Okay. 2018 की बात है जब हमने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था. सचिन जी, मुझे आज भी याद है, वो फाउंडर बहुत पैशनेट फाउंडर है. आप उनके साथ बैठ जाओ ना तो 3 घंटे भी आपको पता नहीं चलेगा कहाँ चले गए. ऐसे फाउंडर्स हैं जिनके साथ मैंने जब उनकी स्टोरी लाइन सुनी, मेरे को ये पता था यार ये कुछ गलत नहीं करेंगे. देखो, बिजनेस में उतार चढ़ाव आ सकता है, बट ये पैसे लेके भागने वाले लोग नहीं. Correct. और सबसे बेस्ट पार्ट ये था कि उनका जो मेन प्रोडक्ट उन्होंने सोचा था तो चलेगा, हाँ. वो नहीं चला तो उन्होंने पिविट कर लिया टू अ प्रोडक्ट जो अभी सबसे ज्यादा चल रहा है उनका. Wow. और जहां रेवेन्यूज नहीं थी से लेकर आज 25 करोड़ के रेवेन्यू कर रहे हैं वो. दिस इज अ मैसिव शिफ्ट, राइट? yeah. तो ये फाउंडर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. सेकंड एक और कंपनी है मेरे दिल के बहुत करीब है, ई-मोटराडो, राइट? Oh, कुणाल the धोनी कंपनी, Dhoni company is. इट्स नोन एज द धोनी कंपनी. It's the Dhoni company. Yeah. सो उसमें कुणाल है, दीज गाइज, आदित्य, कुणाल, इन लोगों से जब मैं मिला, हाँ. अगेन पैशनेट गाइज, वांटेड टू डू समथिंग गुड. ईवी सेक्टर में बहुत अच्छा काम किया इन लोगों ने, Yeah. एंड दे रेज्ड आल्सो सीरियस कैपिटल. Yeah, yeah. हम लोग फर्स्ट चेक राइटर्स थे. Really? पहला चेक हम In लोगों ने E-Motorrad. लिया था ई-मोटराड में, राइट? विक्रांत देके आया था ये डील और हमने डील की थी. आज ये कंपनी इतनी बड़ी हो गई तो हमको अच्छा तब लगता बहुत है. फ्यूचरिस्टिक थी, बट इन्वेस्टमेंट वो करेक्ट. तो उस समय टू पुट वो- इन दैट. वो सोचना 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए डालना, टू नाउ अंडरस्टैंडिंग कि यार कहाँ पहुंच गए इस पहुंच गए? कंपनी, और पुणे में इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल दिया अब उन्होंने. सो ऐसे फाउंडर्स आपको मिलते हैं, इसलिए मैंने बोला ना, हम बंदे अगर पैशनेट मिल लेना तो प्रोडक्ट तो रिविजिट करके बेटर हो सकता है, रीआइट्रेट हो सकता है. राइट. बट अगर फाउंडर ही ढंग का नहीं हो ना, और वो खाली कैपिटल लेते जा रहा है ना, तो बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है. सो आपको ये देखना पड़ेगा बिजनेस प्लस फाउंडर कैसा है. That's the killer combination at the end of the day. Interesting. Very recently, I think Bombay में there was some event. I'm not able to recall. Was it Wave Summit? Piyush Goyal had made a statement. I don't remember again the event, but वो बात कर रहे थे about how nowadays people are just building, apps and technologies and startups around convenience and food delivery apps and making money, which is great. It is contributing to the ecosystem, the GDP and the economy. But उनका opinion ये था कि ultimately what is happening is आप बस पैसे उठा के जो already underprivileged लोग हैं who don't have the means to have a livelihood, a good livelihood, उनसे बस जो rich और elite class है उनकी जरूरतें पूरी करवा रहे हो. In short यही बोला था उन्होंने इंग्लिश में. Do you have any say or opinion on what he said? सो मेरा ओपिनियन ये है कि ये जो बिजनेसेस है ना, आज बन नहीं रहे, ये 2009-10 से बन रहे. Correct. राइट? Yeah. आज तो ये मेच्योर स्टेज पे आ गए और नाम जाने जा रहे हैं बिकॉज प्री आईपीओ और आईपीओ आ रहे हैं, आर्यन की, हाँ, राइट? obviously. तो आपको समझना पड़ेगा कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में पहले वो समझ रहे हो. ही इज राइट कि हमने बहुत ज्यादा इनोवेटिव प्रोडक्ट शायद नहीं बनाए क्योंकि वो कैपिटल इंटेंसिव है, और इंडिया में $10 मिलियन की वैल्यूएशन पे $2 मिलियन डालने वाले एट जीरो सेल्स लोग है ही नहीं. नहीं Right. करेगा कोई. Yeah. यूएस में इसलिए बन पाते हैं या चाइना में इसलिए बन पाते हैं क्योंकि उनको डे 1 से उतना सपोर्ट या तो गवर्नमेंट या उन इन्वेस्टर्स है जो बहुत मेच्योर इन्वेस्टर्स हैं. इंडिया में वो मेच्योरिटी 2016 या 17 के बाद आई है, करेक्ट. जहाँ पे लार्जर चेक सब आने लगे. और अब के स्टार्टअप देखोगे तो हम डीप टेक भी बना रहे हैं, हम ड्रोन्स भी बना रहे हैं, या राइट? हम भारत सैस बना रहे हैं, करेक्ट. राइट? हम Yeah. बहुत कुछ अलग कर रहे हैं. तो नेगेटिव साइड देखना है तो देख लो, वो तो उसकी तो कोई कमी नहीं है. अच्छी चीजें 100 कर लोगे तो 20 तो नेगेटिव बोलने वाले आएंगे. और अगर पॉजिटिव देखूं तो इंडिया का जो पैराडाइम शिफ्ट है ना, वो बहुत बढ़िया रहा है. मैं भारत बोलता हूँ अब, भारत, या
भारत का जो शिफ्ट है और जो स्टोरी लाइन 2047 की दिख रही है, या जो अब स्टार्टअप फाउंडर्स काम कर रहे हैं, हम स्पेस के रिलेटेड स्टार्टअप्स पे काम कर रहे हैं, Yeah. हम ड्रोन्स पे बहुत मैसिवली काम कर रहे हैं, डिफेंस से रिलेटेड, सोलर से रिलेटेड, डीप टेक, तो हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं. इट्स जस्ट दैट इनको कैपिटल इंटेंसिव चाहिए होती है, और ये जब कैपिटल आता है ना, आज भी वो मेजरली बाहर से आ रहा है. Yeah, exactly. My follow-up question to that was going to be, Prateek, when people are doing such progressive work, and like you said, हर area में you can name startups जो they're killing it and they're building in Bharat, for Bharat and with Bharat का ecosystem. Correct. Then why is it that the people of Bharat or the high net worth individuals within India are not being able to infuse that capital here, and why are we still relying on global investments or global funding? क्योंकि देयर इज रिस्क है. आप समझो, मैं उस नेचर ऑफ इंसान की बात कर रहा हूँ जिसने गोल्ड, इक्विटी मार्केट्स, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया है और पैसा बनाया मल्टीफोल्ड. राइट. अब आप बात कर रहे हो स्टार्टअप्स की जिसकी मिनिमम एवरेज जर्नी होती है मिनिमम 7 years. Okay. राइट. जहां मेरा पैसा डबल हो रहा है हर दूसरे तीसरे साल, ठीक है, से 7 साल तक मुझे पता ही नहीं मेरे कैपिटल का क्या होगा. रिस्क की एपेटाइट कितने लोग ये समझ पा रहे हैं इंडिया में इज अ क्वेश्चन टू आंसर फर्स्ट. बाहर ये मेच्योरिटी है क्योंकि वो सालों से यही कर रहे हैं. राइट. तो इसलिए हम आज भी फॉरेन कैपिटल पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करते हैं. बट अगेन एज आई सेड, 2018-19 के बाद हमने ये शिफ्ट देखा है. तभी 21-22 इंडिया के लिए हाईएस्ट कैपिटल टाइम था फॉर स्टार्टअप्स. राइट. लेकिन उस समय वैल्यूएशन बढ़ा दी लोगों ने, तो हम फिर बिखर गए. अगर राइट स्टार्टअप है और वैल्यूएशन राइट है ना, आप इस रूम से बाहर नहीं जाते और आपको कैपिटल मिल जाता है इंडिया में. एंड आई हैव सीन केसेस. तो प्रॉब्लम क्या है ना, लोग पैसा लगाने के लिए अब रेडी हो रहे हैं, बट अगेन $10 million का चेक डालना है ना, तो यहाँ पे 100 बार सोचेंगे कि डालना है कि नहीं डालना है इतना बड़ा चेक, क्योंकि लोगों को लगता है यार 7 साल तो मिलेगा नहीं कुछ भी पैसा. और ये मेच्योरिटी लोगों के पास बाहर है जो इंडिया में नहीं थी, अब आ रही है. But it's still, we are maturing. We are not in that curve of maturity yet. You are obviously, you've worked with so many startups in India and you continue to do so. But you also expanded globally yourself, especially in UAE. Why UAE? And now that you have MI Capital Services and you're obviously also helping with startup investments there too. Any stark differences जो आप देखते हो between founders there and founders in India, and anything that we, the founders in India can pick from them? So why UAE का एक ही आंसर है. 21 अगेन कोविड की बात करूंगा. कोविड के बाद एक ही ऐसी कंट्री लग रही थी जो सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिवली चल रही थी और सबसे ज्यादा कोविड को बेटर मैनेज किया था. was UAE. ओपन था. करेक्ट. UAE में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे. उससे पहले मैं और मेरी वाइफ शुभांगी दोनों ने CPA ऑस्ट्रेलिया करने का सोचा था. इनफैक्ट वो तो CPA ऑस्ट्रेलिया बन भी गई थी. और हम ऑस्ट्रेलिया जाने वाले थे, पर कोविड के बाद ऐसा हुआ कि द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन केम टू बी UAE, क्योंकि वहां पे सब कुछ था. राइट. वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोविड मैनेज था, अपॉर्चुनिटीज वाज कमिंग क्योंकि कंप्लायंस वाज ग्रोइंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट टू, तो प्रैक्टिस सेट करने के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा था. एंड लकीली आई फाउंड शीतल, हु इज माय पार्टनर देयर एट MI कैपिटल सर्विसेज. ही टोल्ड मी, यार मैं 23 साल से इधर हूँ, मेरे को यार ये प्रैक्टिस बनानी है, मैं कॉर्पोरेट फाइनेंस देख लूंगा, तू प्रैक्टिस का स्ट्रैटेजिक ऑपरेशनल फाइनेंस देख ले. मैंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं देख लूंगा. तो ऑपरेशनल फाइनेंस की हमने टीम बनाई. यार हम बस बाय लक बोल लो या बाय थोड़ा सा गॉड ग्रेस बोल लो, मैंने ये फ्लाइट ली, मैं दुबई पहुंचा, 6 महीने दिए, एंड देयर वाज नो लुकिंग बैक. यार क्योंकि एक चीज मैंने दुबई में देखी, 180 नेशनैलिटीज दुबई रहती है. दैट कल्चर इज अनबीटेबल. तो मेरे को डेली दिन में कभी जर्मन मिलता है, कभी ऑस्ट्रेलियन मिलता है, कभी US मिलता है. मुझे ऐसा लगता है मैं कहाँ हूँ, और फिर भी इंडिया कहीं गायब नहीं होता क्योंकि 40% तो इंडियंस है. इंडिया में खाने, UAE में इंडिया के खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो मेरा सारा जो वहां पे प्रॉब्लम था उसका जवाब मिल गया. हेंस UAE, एंड दैट इज व्हाई आई नेवर केम बैक. फाउंडर्स की मैं बात करूं, क्योंकि अगेन 180 नेशनैलिटीज के लोग हैं, मैंने देखा कि यार वहां का जो ग्रिट और डिटर्मिनेशन है ना लोगों का, टू जस्ट कीप डूइंग नो मैटर व्हाट. लोग तो बोलते रहेंगे,
वो इकोसिस्टम वाज अनमैचेबल। यहाँ तो 1 महीना कैपिटल नहीं आया, लोग कंपनियां बंद करके भाग जाते, राइट? वहां पे ये नहीं था। पीपल यूज टू शाम दाम धन बेद, जो तो यही कंपनी चलानी है क्योंकि हम पैशनेट है इसके लिए। दैट वाज वन थिंग। एंड सेकंड इज यूएई तो कभी मार्केट था ही नहीं, ग्लोबल है मार्केट। यूएई में तो 1 करोड़ लोग हैं खाली, मार्केट तो ग्लोबल है, चाहे इंडिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे यूरोप या अफ्रीका हो। तो मैंने ये देखा कि डे 1 से वो ट्रेंड ही ग्लोबल के लिए, The aspiration is global. always global, right? And they know and they are ready to fight it out to make the product work. यहाँ पे मैंने नहीं देखा। प्लस वहां पे क्या होता है, अगर सपोज मेरी कंपनी नहीं चली एंड धेरे की कंपनी सेम ही फील्ड में काम कर रही है ना, दे आर वेरी कोलैबोरेटिव। कंपटीशन नहीं है वहां से, पीपल आर नॉट कॉम्पिटिटिव। हेल्दी कंपटीशन विद कोलैबोरेशन की यार सपोर्ट कर लो, Okay. राइट? ये मैंने But doesn't that hurt their business? It doesn't ना। आप देखो, आपको भी तो प्रॉब्लम कभी आ सकती है ना बाद में, Obviously. तो क्यों ना वैसे लोगों के साथ करो जो पैशनेट है। सो ये जो कोलैबोरेशंस हमने देखे हैं, अब DIFC देख लो या ADGM देख लो, दे हैव बिकम द हब फॉर स्टार्टअप्स। Yeah. हब 71 हो या इनोवेशन हब हो DIFC का, Yeah. फिनटेक हाइव, these are massive belts. In fact, शेख हमदान Yeah. said इग्नाइट बनाएंगे हम, Uh-huh. इंडिया के 100 स्टार्टअप्स को हम, AI बेस्ड स्टार्टअप्स को हम एक्सपो 2020 वाले एरिया में ले जाके बड़ा बनाएंगे। ये जो विजन है ऑफ कोलैबोरेशन, क्यों वो इंडिया को सपोर्ट करेंगे? वो खाली इंडिया को सपोर्ट नहीं कर रहे, ग्लोब को सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने अपनी जगह दे दी, करेक्ट, आप आओ बनाओ, आपको जो बनाना है हम आपको प्लेटफॉर्म देते। दिस इज व्हाट आई सॉ इन फाउंडर्स देयर, बिकॉज दे गॉट अ लॉट ऑफ सपोर्ट। उनको सपोर्ट बहुत मिला, उनको गाइडेंस बहुत मिली, मेंटोर्स बनते गए। अब प्रतीक एक अकेला मेंटोर नहीं है, जॉर्ज भी कोई मेंटोर है जो ऑस्ट्रेलिया से होगा, यूएस का कोई भी मेंटोर होगा जो जॉन होगा। सो अगेन आपको पैराडाइम शिफ्ट भी ग्लोबल मिला। तो उसके कारण मैंने बहुत चीजें सीखी और मैंने ये देखा कि यार जो इंडियन फाउंडर्स भी हैं जो उधर आ रहे हैं, दे आर थिंकिंग ग्लोबल बिकॉज वी आर ऑलरेडी ग्लोबल। राइट। सो डू यू थिंक समवेयर there is a lot more that the government can do and should be doing to enable the startup ecosystem in India, although we have come a long way? Of course, see, देखो ऐसा है कि गवर्नमेंट को भी मालूम है, और आप अगर बजट्स भी देख रहे हो, हाँ, there's a lot of focus on startups. Right? देखो बजट एलोकेशंस, पॉलिसीज, फंड्स, बहुत कुछ उन्होंने done. So आपको ये समझना पड़ेगा, 50 साल से जो कंट्रीज कर रही हैं वर्सेस लास्ट 20 ईयर्स से हम कर रहे हैं, बट वी हैव रीच्ड अ लेवल जहाँ पे अब बहुत सपोर्ट है गवर्नमेंट, राइट? गवर्नमेंट ग्रांट्स देने लग गई है, सब्सिडीज चालू हो गए, तो इतनी सारी चीजें हैं जो गवर्नमेंट अब सपोर्ट कर रही है। बट अगेन बाहर ये $1 मिलियन है, यहाँ पे $1 मिलियन है। ये जो शिफ्ट है ना, ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। करेक्ट। इसको $1 मिलियन बनने में टाइम लगेगा, बट वी आर गोइंग इन द राइट ट्रेजेक्टरी, एंड दैट इज व्हाई आई सेड इफ यू आर इन द गेम फॉर 10 years, बोलते हैं ना रिंग में रहना बहुत जरूरी है। इफ यू आर देयर इन द रिंग फॉर 10 years एंड इफ यू आर अ फाउंडर जो भागना नहीं चाहता, इंडिया इज द कंट्री टू फोकस, क्योंकि कैपिटल भी आएगा, लोगों का विश्वास भी बढ़ेगा, एंड आई थिंक जो हम यहाँ पे बना रहे हैं अगेन, बिकॉज कॉस्ट बहुत सस्ती है। करेक्ट। आपको समझना पड़ेगा, यूएई में अगर मुझे कंपनी भी खोलनी है तो मेरा साल का 10 लाख रुपए गया। करेक्ट, राइट? कंप्लायंस के साथ वो एनुअल कॉस्ट है मेरी। इंडिया में नहीं है इतनी एनुअल कॉस्ट, सो कॉस्ट नहीं है, लेबर इज वेरी गुड एंड चीप कंपेयर टू द ग्लोब, राइट? जब ये सब चीजें आपके फेवर में है, why would you want to go outside, right? Makes a lot of sense. Very interesting. I think when all of this is happening, and I mean the growth story had started long back, and we are also now, you know, the 4th largest in terms of our GDP also very recently. But tell me this, that where do you see Bharat going in terms of in the next 10 years? Because I think you have been very futuristic with at least your startup investments yourself individually. Yeah. What is the future? What kind of startups will thrive, will evolve, will survive? And will it become easier? I also want to know, startup founders के लिए क्या easy हो जाएगा to scale a startup without funding and still make bootstrap businesses in India? Or will they still be heavily dependent on investors? So, सबसे पहले हम बात करते हैं फ्यूचर की। मेरा ये मानना है कि फ्यूचर ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम जो इंडिया या भारत बनाएगा विल बी अनमैचेबल, अगेन बिकॉज ऑफ द टैलेंट ऑफ पीपल हु आर वर्किंग हियर।
Okay. जो अब यंग एंटरप्रेन्योर्स में मैंने देखा है आजकल, क्योंकि हम इवेंट्स भी करते हैं, हम जाते भी हैं, आई थिंक जो क्वालिटी ऑफ स्टार्टअप्स आ रहे हैं वो मच बेटर। पहला। सेकंड, आपने बोला बूटस्ट्रैप, पहले हम बूटस्ट्रैप सुनते ही नहीं थे। करेक्ट। गिग मग बनानी है, मग के लिए पैसे दे दो, हाँ। राइट, ये होता था। हाँ। अब फाउंडर्स कैपिटल लेने से पहले 10 बार सोचता है, क्योंकि उसको पता चल गया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू रिटर्न द कैपिटल। वो सेंस आ गया है लोगों में। दैट इज व्हाई लॉट ऑफ स्टार्टअप्स आर बूटस्ट्रैप टू अ लेवल, राइट। अब वो पैसा तभी उठाते हैं जब एक्चुअल में नीड है और उनके पास नहीं है, राइट। तो दे हैव अंडरस्टूड दिस, जिसके कारण एक पॉजिटिव साइन है। तीसरा, गवर्नमेंट सपोर्ट थोड़ा सा बढ़ रहा है, विच इज बेटर, एंड हेंस आई थिंक इट इज फ्यूचरिस्टिक। रही बात कि यू नो इम्पैक्ट क्या होगा इन स्टार्टअप्स का, और यू नो बूटस्ट्रैप ही बनेंगे क्या, इट डिपेंड्स ऑन स्टार्टअप्स दैट दे आर स्टार्टिंग। अगर कोई स्टार्टर कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस चालू कर रहा है तो डे वन से कैपिटल लेगा ही, इवन एट द बिगिनिंग। इवन एट द बिगिनिंग लेना ही पड़ेगा, उसके पास ऑप्शन ही नहीं है। अगर खुद के पास नहीं है तो लेना ही पड़ेगा ना, ऑप्शन क्या है? वो भी है। सो आइडियाज until execution have no plan, True. no success. True. So you need passionate founders and great executors also. खाली passionate founders भी कुछ नहीं कर पाते। आपको execution भी उतने पे ही focus करना पड़ेगा, तो ये जाके ecosystem, I think that is what we've seen also in the last couple of years growing, कि founders अब focused हैं, pivot करना जानते हैं। पहले तो ऐसा लगता था हमने जो बनाया वही सबसे सही है, अब वो change हो गया attitude, वो attitude change हो गया, लोग adapt हो रहे हैं और पिवट कर रहे हैं, which is why I think you know I'm also bullish on India, and इसलिए I think जितने भी investments मैंने किए हैं apart from 5-7 that I've done outside India, सारे majorly India में। अच्छा। I've done all startup investments in India. Got it. So उसका reason एक ही है कि I think you know जो growth trajectory दिखती है from you know 1 करोड़ के धंधे से लेकर 50 करोड़ का धंधा बनाना, वो यहाँ पे अब दिख रहा है, और you know I see it as a very futuristic option. Amazing. And do you also see the next Apple, Microsoft, Google, or some revolutionary company being born out of India in the next, I don't know, 10, 20, 30 years? We will make. Yeah. If not Apples and Googles, we'll make something for sure in, you know, deep tech, right? See, we need to understand कि हमारी इकोनॉमी में टेक्नोलॉजी is later. पहले हमने प्रोडक्ट्स बनाने में फोकस किया हुआ है। Right. हम जो प्रोडक्ट्स बना पाएंगे ना मेक इन इंडिया में, वो जो प्रोडक्ट्स है वो मच बेटर होंगी कंपेयर टू द वर्ल्ड। और अब मेकिंग इंडिया के प्रोडक्ट्स चल भी रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है प्रोडक्ट इंडस्ट्री ज्यादा बेटर करेगा rather than टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी विल प्ले इट्स ओन रोल, क्योंकि यहाँ पे रेगुलेशंस अभी भी थोड़े से यू नो फिक्स नहीं है। Right. आज ब्लॉकचेन में किसी को काम करना है, Web3 में, क्रिप्टो में कुछ काम करना है, तो आज भी थोड़े बहुत ग्रे एरियाज, जब तक वो फाइनल नहीं होंगे ना, तब तक सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज इंडिया में तभी आ सकता है अगर रेगुलेशन साथ दे। तो वो अपने को समझना पड़ेगा, पर प्रोडक्ट बनाने में रेगुलेशंस क्लियर है, इसलिए प्रोडक्ट इंडस्ट्री में हम बहुत आगे। टच एंड फील वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, आई थिंक इंडिया विल डू वंडर्स इन दैट एंड विल बिकम अ मैन्युफैक्चरिंग हब। Got it. Very interesting. और आपने एक चीज मेरे को पूछी थी जो शायद मैं मिस कर गया, वो सेक्टर्स। कि सेक्टर्स कौन से इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से सस्टेनेबिलिटी विच इंक्लूड्स क्लाइमेट एंड एग्रीकल्चर, दैट्स नॉट गोइंग एनीवेयर। आई थिंक मेंटल हेल्थ ओवर हेल्थ टेक्स, right? Mental health over health tech, yeah, now. So now I have seen that Gen Zs को friends एक लेवल तक चाहिए, And loneliness is a big problem. बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। So I think mental health is a greater area that I feel will work. Of course, anything in defense, drones, deep tech will work. But एक सेक्टर अगेन जिसके लिए मैं बुलिश हूँ और हमेशा रहूंगा इज D2C। वो कहीं नहीं जाएगा। D2C में अगर आपके प्रोडक्ट्स irrespective of category, irrespective of category, आप कपड़ा पहनना छोड़ने नहीं वाले, राइट, वो तो कभी नहीं जाने वाला। यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि कैटेगरी इंटरेस्टिंग, और उसका क्लासिक एग्जांपल है स्निच। यार, I was just going to say क्लासिक example, राइट। कुछ तो ऐसी मार्केट में आके क्या डिसरप्ट किया, सीरियसली यार। अब बोलो, फ्रॉम द Zaras to the H&Ms of the world to what not was there, सब खत्म कर दिया। तो मेरे को कोई पूछता है ना, प्लेस है, स्निच इज अ ग्लेयरिंग एग्जांपल, वो आपको दिखा रहा है करके। टेक द लगे, फाउंडर है यार, ये Nasher Miles, Mokobara, what have they done? इवन नहीं, अभी तो देखो हेल्थ पे भी काफी फोकस है, तो जीरो वाले भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, बट यू नो
you can see this is all D2C space. करेक्ट. Nothing new. It's Yeah. just the category जो रिविजन किया है और उसको डिसरप्ट कर. और कितने ट्रेडिशनल बिजनेसेस थे जो सालों से चलाए आ रहे हैं, उसको डिसरप्ट किया. करेक्ट. So Got it. I still feel कि D2C तो कहीं नहीं जा रहा. Understood. With MI Capital Services and Ivy Growth Associates, do you have something that you're really looking forward to, especially in the next 3 to 5 years ka horizon? Where do you want to take it? Any other exciting plans or things that you'd like to share which you're planning on doing? Can we expect Prateek to do something apart from the areas that he's ventured in as well? I don't know. So, see, MI Capital एक ही काम करता है, आपकी लाइफ ऑफ कंप्लायंस को इजी बनाता है. Yeah. और मैं चाहता हूं कि हम टॉप 5 कंट्रीज में हो, विच इज सिंगापुर, लंदन, यूएस, मिडल ईस्ट एंड इंडिया. Right. और इंडिया हमारा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बने, जो शीतल का भी विजन है. Okay. हमारा बेंच स्ट्रेंथ, हमारी कोर इंडिया बने, Right. और हम अच्छे लीडर्स को ग्लोबली प्लेस करते रहें जैसे जैसे हमारी एपेटाइट बढ़े. सो दैट्स व्हाट वी वांट टू डू विद MI Capital Services. Yeah. यार यूएई में किसी को आना है, सिंगापुर में किसी को जाना है, तो वी बिकम दैट ब्रिज. कंपनी फॉर्मेशन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, नहीं है. पर गाइडेंस देना, उनकी स्ट्रक्चर्स बनाना, फैमिली एसेट को प्रोटेक्ट करना, राइट, वो कैपिटल को प्रोटेक्ट करना जो आपने हार्ड एंड बनाया है. तो दैट इज व्हाट वी डू एट MI Capital. ये टारगेट हमारा है 2030 तक कि हम 5 कंट्रीज में हो. That's our vision with MI Capital. When it comes to Ivy Growth and Prateek, myself, I want to be impacting 500 founders. And this is something that I've been proudly saying since a long time. By 2030, I remember. By 2030. In fact, मेरा LinkedIn हाँ. आप खोल के देख लो. हाँ. अगर किसी का मैसेज है ना तो वो रिप्लाइड होगा. Right. और रिप्लाइड नहीं होगा तो उसका एक ही रीजन होगा कि कैपिटल मांग रहे हैं सब. राइट. तो वो एक मैसेजेस के अलावा मैंने कोई भी ऐसा मैसेज नहीं है जो रिप्लाई नहीं किया होगा LinkedIn पे, बिकॉज आई वॉन्ट टू बिकम अप्रोचेबल एंड रीच दोज फाउंडर्स हु नीड हेल्प इन बिजनेस ग्रोथ, नॉट जस्ट कैपिटल. राइट. सो मेरा फोकस है कि उन 500 फाउंडर्स को मैं इम्पैक्टफुली हेल्प करूं, नॉट जस्ट विद कैपिटल और नॉट जस्ट विद बिजनेस. और कैपिटल मैं हमेशा इसलिए यूज करता हूं क्योंकि अगर आपका स्किन इन द गेम नहीं है ना, तो फिर कुछ तो कोई वैल्यू नहीं है. नहीं है. तो पीपल विल नॉट रिस्पेक्ट टू एक पॉइंट के बाद. राइट. तो 5 लाख डालो, 2 लाख डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता. आपकी एपेटाइट है उतनी डालो. बट कैपिटल डाल दिया ना, देन पीपल फील यू आर सीरियस अबाउट इट. इट्स अ सेल्फ लर्निंग कैपिटल दैट यू नीड टू प्लेस इन द कंपनी. मैं इसको बोलता हूँ. yeah. तो ये मेरा विजन है विद आईवी ग्रोथ. प्रतीक तोषनीवाल आई थिंक एक ही चीज और ऐड कर सकता है. हाँ. जो मेरे को करना है, आई एम ऑन एन एक्सप्लोरिंग पाथ राइट नाउ. मुझे एक दुनिया घूमनी है. अच्छा. और अच्छी अच्छी चीजें सीखनी है. आई एम अ लर्नर, राइट. आई लव टू लर्न बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक तो मैंने कुछ सीखा ही नहीं है. अभी तक जो सीखा है बहुत लिमिटेड है. आई थिंक मैं जब तक घूमूंगा नहीं, उस इकोसिस्टम में जाऊंगा नहीं, मुझे नहीं पता चलेगा कि क्या बेहतर हो रहा है जो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या मैं अपने और जिसमें भी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ उस फाउंडर्स के लिए क्या नेटवर्क, क्या ग्रोथ और करूँ जिसमें उनको क्लाइंट्स मिले. सो दैट्स माई फोकस कि मैं ट्रैवलिंग करूँ, यू नो, फॉर माई सेल्फ For you. एंड फॉर द पीपल दैट आई एम इन्वेस्टिंग. And इस सब के बीच में do you see content in general or content creation play any role? How important do you think it is for investment funds like yours and organizations like yours, or for founders like you, to today be at the, if not the forefront or the face of the business, but be present and seen? Have you seen that play a role or a shift? Because you also organize 21/72. 4 seasons are done. You call a lot of creators from the ecosystem also, and that's how I know you. What shift has content brought in, if at all, in this entire, you know, space? I think the best shift that it has brought is put a face to the name, brought value to the ecosystem. क्योंकि अभी तक मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना पता होता था कि बुक्स में क्या है. आप लोगों ने उसको इजी करके लोगों तक मैसेज पहुंचाया कि बॉस प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है. Correct. राइट. दैट्स नंबर 1. हाँ. कंटेंट क्रिएटर्स ने ऐसे एजुकेशन को दिया है बाहर प्लेटफॉर्म्स पे जहाँ पे लोगों को थोड़ी समझ आने लग गई है कि यार मुझे अगर एजुकेशन पे कुछ फोकस करना है और मुझे जानना है मेरा करियर पाथ कहाँ हो, तो मैं धैर्य को सुनूं. मुझे अगर फाइनेंस में जाना है तो मैं अनुष्का को सुनूं. मुझे अगर एंटरप्रेन्योरशिप पे जाना है तो मैं सार्थक को सुनूं. राइट. ये मतलब ये जो लिंक है ना, दिस इज व्हाट हैज इम्पैक्टेड. क्योंकि पहले ये नहीं होता था. कौन होता था यार कंटेंट इंडस्ट्री के पहले? किसने इतनी इजीली कंटेंट को क्रिएट किया है?
आज मैं प्राउडली बोलता हूँ कि राज शमानी वॉज एट 21/72, राइट? Right. वॉट ही डिड वॉज अमेजिंग, क्योंकि लोग सिर्फ एक साइड ऑफ द स्टोरी सुनते हैं और अपना एनालिसिस कर लेते हैं. Right. अब हमारे पास दोनों साइड ऑफ द स्टोरी Correct. जो कंटेंट क्रिएटर्स ने ही किया है. Yeah. ये जो आप लोग कर रहे हो ना, ऑफ लिसनिंग टू बोथ द साइड्स एंड देन डिसाइडिंग हु इज राइट Who's एंड right? रॉन्ग Yeah. इज इम्पोर्टेंट. दैट्स नंबर 1. नंबर 2, आप ऐसे चेहरे लाने लगे जिन्होंने रियल धंधा बनाया है. Hmm. आप लोग के पॉडकास्ट आप किसी की भी उठा के सुन लो या कंटेंट बना के सुन लो, इट्स फैक्चुअल. हवा हवा में बात नहीं हो रही है. मोटिवेशन नहीं कर रहे आप लोग. Obviously. आप लोग रियल फैक्ट्स, People have been there, done that. राइट? आज किसी कंपनी ने अगर 200 करोड़ का धंधा किया और 20 करोड़ रुपए प्रॉफिट बना रहा है, Hmm. उनको प्लेटफॉर्म पे लाने वाले आप लोग हो. Hmm. So hats off to you guys for pulling this off, and I think this is the shift that will make the younger entrepreneurs of tomorrow a more matured, entrepreneurs for tomorrow. So thank you so much again for bringing this, topic, and content creators इसलिए मेरे events में होते हैं Hmm. और हमेशा रहेंगे. उसका रीजन है जो आप लोग सिखा सकते हो वो रियल लाइफ स्टोरीज है, रियल लाइफ स्टोरीज नहीं है. हम रील नहीं देख रहे, Correct. हम रियल लाइफ समझ रहे हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Very well said. I think with that, Prateek, obviously I can keep going on. I have a lot of other questions, but maybe we'll do a part 2. But I have one last question before we let you go. I think जिन भी लोगों ने अभी तक podcast को tune in करके they would have reached this point. I'm pretty sure ये वो लोग हैं जिनको या तो खुद इन्वेस्टर बनना है या they aspire to become a CFO one day, or there are people who are very passionate at least about the startup ecosystem. इन तीनों में से एक. Now, for people as such who aspire to do something similar to your career trajectory, just share your top 3 learnings. Now, I'm not asking you to give advice. I'm not asking कि आप ये बता दो आपने lessons क्या learn किए, but it could be anything you picked from a book, a podcast, a mentor, a friend, I don't know, or an advice your dad gave you, but 3 things which have gotten you this far and have helped you in tough times that can help somebody who's going to start. सो फर्स्ट इज रिस्क लेना सीखो. राइट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हम बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं पर हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाते क्योंकि हमको लगता है रिस्क है. मैं बोलता हूँ एपेटाइट है उतनी रिस्क लो. राइट, अगर रिस्क नहीं लोगे तो सीखोगे नहीं कभी भी. गलत हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा. फेलियर्स आर पॉसिबल, बट फेलियर इज ओनली गोना मेक यू सक्सीड. उसके अलावा आप सक्सेस नहीं कर पाओगे. और अगर खाली सक्सेस प्राप्त किया है ना आपने तो फिर तो कुछ तो कुछ देखा ही नहीं देखा आपने अपनी जिंदगी में. सही तो बात. मेरे लिए रिस्क लेना बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट्स द फर्स्ट लर्निंग. द सेकंड इज it's easy to say never give up, but I'm saying give up also at times, अच्छा, you're saying but give up. get back. Give Well up said. तभी तो second time founders, third time founders आ रहे आ हैं. रहे हैं, literally. So give up at a point where you feel this is the dead end, but don't die. Yeah. Get back up and create something again. तीसरी चीज जो मैं बहुत importantly believe करता हूँ is value for money. Okay. राइट, टाइम सबके पास उतना ही है. रिस्पेक्ट द पीपल whom you're working with and respect if someone has given you capital. राइट, अगर आप पहले बिजनेस में उनको कैपिटल नहीं दे पाए ना रिटर्न करके, अगर सेकेंड टाइम आपने बना लिया ना, आई वुड वॉन्ट एन अर्ज. इनफैक्ट मैं ये करता हूँ कि मैं पुराने इन्वेस्टर्स को पैसा देता हूँ अगर कुछ भी कारण से उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा और नहीं बना. Because you're a responsible investor, right? Yeah. And your commitment should be your commitment, right? You एक बार बोल दिया तो हाँ, you cannot just say कि यार नहीं हो पाया बस. अरे नहीं हो पाया ठीक है, कोई बात नहीं, वो समझ लेगा. But हर बार नहीं हो पाया is not right, right? correct. So that is why I said give up but come back. Come back and then perform better, right? क्योंकि वो लोग आप पे पैसा डालेंगे जिन्होंने आप पे पैसा डाला है if you're ethically right. True. And that is why I always back founders who are there with me for a long journey. वो फेल भी होते हैं तो वापस आते हैं तो मैं पैसा डालूंगा because they've been ethical, right? That's very important. Lastly, I would say I love this from Mark Cuban's journey. Okay. He said you only have to do one thing right. Yeah. You can have 99 failures. True. But एक ही चीज तो सही करनी है. वो एक चीज चलनी चाहिए. वो एक चीज चला लो. ऐसा मत सोचो यार मैं आज फेल हो गया, मेरे से तो कुछ हो ही नहीं रहा, कल फेल हो गया, हो ही नहीं रहा. You have to do only one thing right in your journey, Yeah. and you will make it big. So that's what I. What a beautiful line to end it with. But I think this has been amazing, Prateek. Obviously, I have known you
for a while now and as a friend, but this side is something, the professional side is something that I have dived deep into and dug into his brain today. So I think this was super insightful. I'm definitely sure जिन भी लोगों ने इसको with an intent of a career aspiration देखा होगा, they would have learned a lot of valuable lessons from your practical experience of being in the business, investing your own hard-earned money, putting capital in, and everything else that you shared, right? So for everybody who stuck around to this point, just one advice, अगर आप सिर्फ podcast सुन के चले जाओगे and you'll not implement what you've learned and you'll not execute, it's not going to help. It doesn't help, right? I watch and doom scroll through a lot of content, but जब तक मैं उसको अप्लाई नहीं करती हूँ, it's never going to help you in your life. So I would urge you to actually apply everything from Prateek's life and his journey as an investor into your real life. Then it will help you. But I think with that, Prateek, thank you so much once again. I had a great time. I hope that you enjoyed this conversation too. And yeah, I'm really looking forward to doing this again sometime. Thank you so much, Dhairya, for having me, and thank you for decoding everyone. Yes, Dhairya Decodes. With that, before you leave, don't forget to like, share and subscribe to the Dhairya Decodes channel. And for everyone and anybody who would like to connect with Prateek, we'll be linking all of Prateek's social media handles and his company handles in the description. So definitely check it out. We'll be back with yet another episode and I'll see you in the next one. Thank you so much.